ನಮಸ್ಕಾರ. ಸದಾನಂದ ಬಾಬುನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಯಾರ ಪರವಲ್ಲ, ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಯಾರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಾವು. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಡಳಿತನೂ ಸಹ ನಾವು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 10 ವರ್ಷ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಕೆಲಸ. ಅದು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಏನು ದೇಶದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಏನು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡೋರು, ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ದುಡಿಯೋರು, ಅವರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇವೆ. 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು UAPA ಏನು ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ 3974 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 1226 ಮಂದಿ ಮೇಲೆ FIR ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು NIA ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಇಂದಿಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ಲರ್ ಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮೊನ್ನೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು 83 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಏನಾಯ್ದರು ಒಂದು ಸ್ಟೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದೇ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಪೈಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದುರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿದೆ. ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತು ಅಂತಾರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 4 ಜಡ್ಜಸ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಳಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. ಅಮೇರಿಕನ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ NIA ಮತ್ತು UAPA ಏನು ಕಾನೂನಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವರವರ್ ರಾವ್ ಈಗ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಎಲಗಾರ ಪರಿಷತ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲೇನು ಸಾಗರ್ ಗೋಖಲೆ, ಜ್ಯೋತಿ ಜಗತಾಪ, ಮಿರಣ್ ಹೈದರ್ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಇನ್ನೂ ಸಹಿತ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ, ಗೌತಮ್ ನವಿಕಾ, ಅರುಣ್ ಪೆರೇರಾ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 72% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೋದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 72% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. 2015ರಿಂದ 2019ವರೆಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ 1421 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ದುರುಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಡಿಯೋದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಮಾಜ ಚಿಂತಕರು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಇದು. ಮತ್ತು JNU ಹೋರಾಟಗಾರ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರು UAPAದಲ್ಲೇ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ನೀವು ಯಾರು ಚಮಚ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈಗ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಇಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಾರೋ ಅವರು, ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾನೂನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ, ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನು ಕೇಳೋರು ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. नमस्कार. कितना डरपोक है रे तू. एक 84 साल के बुजुर्ग और बूढ़े इंसान से तू डर गया. उस 84 साल के बूढ़े और बुजुर्ग, उसमें क्या हिम्मत थी. फना होने की इजाजत ली नहीं जाती. ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती. कितना डरपोक है रे तू. 56 इंच बोलता है, पता नहीं तेरा 2 इंच भी कहीं है या नहीं है. कितना डर गया. उस 84 साल के बूढ़े फादर स्टैन स्वामी की बात कर रहा हूं, जिनकी जान चली गई
इसी वतन के लिए लड़ते लड़ते और इसी वतन के लिए आवाज उठाते उठाते। वो तो चले गए, लेकिन तुम्हारी इतिहास ऐसी लिख गए ना कि मिटाते जिंदगी भर ना मिटेगी इतिहास। जब तक दुनिया रहेगी और जब तक हमारा ये भारत रहेगा और सदैव रहेगा, तो तुम्हारा ये इतिहास भी लिखा जाएगा। कितना डरता है रे तू लोगों की आवाज बंद करने के लिए। तू ही कहता था ना कि मैं अकाउंटेबल हूं, सबका जवाब दूंगा। शर्म आती है मुझे आज अपने भारत के उस गोदी मीडिया पे। शर्म आती है मुझे उस भारत के जिसका चौथा स्तंभ नाम था सवाल पूछने के लिए सरकार से, जिसका काम था ये सवाल पूछना कि लोगों की जान क्यों ले रहे हो जनाब। क्या इसी अच्छे दिन के लिए तुम्हें लोगों ने चुना था? ये सवाल पूछना गोदी मीडिया का काम था। आप लोगों को बार बार कहता हूं कि गोदी मीडिया को आप भूल जाइए, सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। कितना डरपोक है ये शख्सियत, देखो ना आप। 84 साल के बूढ़े से डर गया, जिससे पानी पीने के लिए स्ट्रॉ की पाइप मांगी तो उसको वो भी मुहैया नहीं करने दिया इसने। कितना डरपोक है ये, जिसने 7 सालों में जनता के किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये कितना बड़ा डरपोक है। आप लोग समझ रहे हो इन चीजों को। और जब शासक डरपोक होता है तो वो तानाशाही करता है, क्योंकि तानाशाही करना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो डरपोक है, बहुत बड़ा डरपोक है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, कितना डरपोक है रे तू। तो कितनी बड़ी बड़ी इंची की बात करता था, तेरा तो 2 इंची का भी नहीं है मुझे लगता है कहीं भी। एक 84 साल के बुजुर्ग, मैं बूढ़ा वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ताकि आपको हिट करे, स्टेन स्वामी लड़ते लड़ते देश के लिए कुर्बान हो गए। कहां है मेरे वो 24 साल के नौजवान? इस 84 साल के बुजुर्ग से अगर आप सीख ले सकते हैं तो लीजिए। कहां है मेरे देश के वो नौजवान जिसकी पॉपुलेशन इस वक्त सबसे ज्यादा है देश में? यह देश आपका है, लेकिन लड़ किसान रहे हैं, लड़ स्टेन स्वामी जैसे लोग रहे, और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारों का भी नाम नहीं लेना चाहता, आपको पता है, जिनको ठूस दिया गया, जिनकी आवाज बंद करने के लिए। लेकिन स्टेन स्वामी तो आजाद हो गए, लेकिन एक चीज याद रखे, वो इंची टेप से नापने वाला, उसका इतिहास ऐसा लिख गया ना कि आने वाले 1000 साल तक वो इतिहास मिटा नहीं पाएंगे। ये कितना डरपोक है रे तू गोदी मीडिया। तू कब से कितना गुलामी करता है? कभी सवाल पूछा तुमने इस बात पे? सिवाय 1, 2 या 3 जो हमारे देश की जनता की आवाज उठा रहे हैं, और खुल के कहने में कोई दिक्कत नहीं है। उस शख्स का नाम है सबसे नंबर टॉप पे रवीश कुमार, और कभी कभी और एक प्रोग्राम में बात करने वाले संदीप चौधरी। कुछ और न्यूज चैनल है, मैं माफी चाहता हूं जिसका नाम नहीं ले पाऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं इस काम को। एक चीज याद रखिएगा, कितना डरपोक है रे तू। 156 इंच की छाती तो उस 84 साल के बुजुर्ग की थी, स्टेन स्वामी की, जो लड़ते लड़ते हार नहीं मानी उसने। गोदी मीडिया, अगर तुमने आज तक ये सवाल किया होता कि देश की जनता की जवाब देना उस शासक का फर्ज बनता है, इस लोकतंत्र में ये कर्तव्य बनता है, तो आज ये नौबत नहीं आती। यूएपीए लगा दो बोलने वालों पे, उसमें से 95% की बेगुनाही साबित हो जाती है, उससे ज़्यादा की बेगुनाही साबित हो जाती है। ये सवाल क्यों नहीं उठता है इस देश में? क्या मनमर्जी चलती है कि जिसके मुंह पे हो उसके मुंह पे ताला लगा दो? मुंह पे ताला तो तुम्हारे लग गई गोदी मीडिया। जनता, 138 करोड़ जनता इस देश की समझ चुकी है कि तुम क्या कर रहे हो आज के डेट में। खैर, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिंदा है लाशें, मुर्दा जमी है। मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में हो क्या रहा है।
जो सोशल मीडिया का आज भी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया, जिसमें वो जजमेंट आया कि उन्होंने कहा कि ये कानून बहुत पहले रद्द हो चुका है, इसमें है ही नहीं, फिर भी लोगों को उठा उठा के बंद किया जा रहा है। सवाल गोदी मीडिया को उठाना था क्योंकि इनकी पहुंच ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज की डेट में इनकी पहुंच सिर्फ इतनी है कि अगर इनके चैनल पे अगर लाइव मैसेज करने का ऑप्शन हो ना, तो जैसे हमारे भाई मुझे कुछ कह रहे हैं ना, इस गोदी मीडिया की न्यूज़ पढ़ने में भी बहुत दिक्कत आ जाती है। सैल्यूट है फादर स्टेन स्वामी, आपको ये देश याद रखेगा और आप ना पहले हैं ना आखिरी हैं। पता नहीं कितने लोग अभी आप तक पहुंचेंगे, क्योंकि आवाज़ इस देश में बंद करने की कोशिश चल रही है। मैं फिर भी धन्यवाद देता हूं न्यायालय का, जिन्होंने इस बीच में कुछ बहुत सारे ऐसे फैसले दिए हैं, लोगों को राहत दी है कि आवाज़ उनकी बदस्तूर उठती रहे। लेकिन छाती का साइज 56 इंची तब होता है जनाब, जब सवालों की जवाब जनता की दे पाए। कोई बात नहीं है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फादर स्टेन स्वामी 84 के साल की उम्र में भी लड़ते लड़ते वो हारे नहीं। लेकिन हमारे नौजवान हार जाते हैं, आवाज़ नहीं निकल पाती है। सीख लेने की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं, सीखिए उनसे। आज के डेट में आप आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। आज की डेट में आप महंगाई 30 का पेट्रोल बोला था, 105 110 कहीं कहीं जो भी रेट है 100 से ऊपर ही है कई जगह पे। क्या ठगा है इस देश को जुमले बना के। और एक बात बताइएगा आखिर में कि क्या इस गोदी मीडिया ने जिस जुमले को बोल के इस देश की जनता को बड़गलाया गया था, उस देश की जनता को जो नारा दिया गया था, बहुत हुआ महंगाई की मार अब की बार, बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार अब की बार, इस गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि वो नारा एक बार चला के अपने बापू से सवाल पूछ ले। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं। जो कहते थे कि नोटबंदी से लेकर के, नोटबंदी हो, जीएसटी हो, लॉकडाउन की फेल्योर हो, लॉकडाउन में मजदूरों और अब भारत के आम जनता की जो जाने गई, उस पर सवाल ये गोदी मीडिया कभी पूछ ले? कभी नहीं पूछ सकती, कभी नहीं पूछ सकती, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन 84 साल के उस बुजुर्ग ने ये बताया, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और जो उनको जानते हैं, जो उनको पहचानते हैं और जो सच्चे देशभक्त हैं, एक बुजुर्ग की वो लड़ाई हमेशा याद रखी जाएगी और हर वक्त याद रखी जाएगी, और वो इतिहास से कभी मिटेगा नहीं। और ये काला अध्याय के रूप में जुड़ चुका है आज के डेट में। वो शासक आज समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब समझेंगे ना, तो इसकी दुहाई साल दर साल दी जाएगी। उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। जब 84 साल के बुजुर्ग बोलते बोलते और लड़ते लड़ते जा सकते हैं, तो डरना किस बात का दोस्त? जाना तो सबको है इस दुनिया से। नाम क्या लिखा के जाओगे, ये आपके ऊपर है। एक सवाल नहीं पूछते हैं किसी से कोई। नमस्कार दोस्तों, और लगे रहो दोस्त। मुझे आप कुछ भी कह दीजिए, जितना आप मुझे उल्टा सीधा बोलोगे, मेरी हिम्मत कम से कम 20 गुना बढ़ जाती है उसी लाइव में आकर के, जब आप मुझे गाली देते हो। 2-4 बंदे जो भी हैं आप देते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग आईटी सेल में 50-50 पैसे पे बिकने वाले इंसान हो। इस देश के लिए नहीं, अपने पेट के लिए जी रहे हो, और 50 पैसे में लोगों को गाली देने के लिए, यही आपकी औकात है। देते रहो, कोई बात नहीं है। और आप जितना गाली दोगे, मैं अपने आप को जानता हूं, मेरी हिम्मत उतनी मजबूत होती है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूं और सही काम कर रहा हूं अपने देश के लिए। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। जब तक आप लोग मुझे गाली देते हो ना, आप यकीन मानिए, आपकी एक गाली से मेरा
100% हिम्मत बढ़ जाती है। आपके 2 गाली से 200%, तो देते रहिए। RIP Father Stan Swami, and the lesson you taught to the nation, it will be always remembered, and you have created the history. ये 50 पैसे के भक्त अंग्रेजी नहीं समझेंगे। फादर स्टेन स्वामी, सॉरी, माफी चाहता हूं, ये 50 पैसे वाले लोग हैं, भक्त लोग जो गाली दे रहे हैं मुझे, जो गाली दे रहे हैं उनको कह रहा हूं, बस देते रहिए। तुम भी अनपढ़ हो, तुम्हारे आने वाली नस्लें भी अनपढ़ होगी, और तुम क्या बोलूं यार तुमको। पापा जी के पेंशन पे जो खा रहे थे ना, उनका FD जो चल रहा था पेंशन का, उसमें भी बहुत आधा हो गया यार। 9% था पहले, 2014 से पहले 4 पॉइंट कुछ समथिंग % पे अब FD उनका होगा। वो तो FD तोड़ के खा रहे होंगे। आप यकीनन अपने घर में पूछ लेना पापा जी से। आप तो किसी काबिल रहे नहीं, 50 पैसे में गाली देके क्या करोगे मेरे भाई। लेकिन ये सब आते हैं जाते हैं ऐसे ऐसे लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन RIP फादर स्टेन स्वामी, और आपका ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा, और जो लड़ाई आपने लड़ी उसके लिए आपको साधुवाद है, नमन है। और आपने जरूर उन देशभक्त के सीने में एक ये मैसेज जरूर दिया कि एक 84 साल का बुजुर्ग लड़ सकता है, जान दे सकता है। तो 24 साल हो, 54 साल हो, चाहे 34 साल हो, अगर वो नहीं बोल पाते हैं तो क्या कह सकते हैं, उनकी कुछ मजबूरी हो सकती है। और इतिहास लिखा जा चुका है, एक अध्याय का और शुरुआत हो चुका है। नमस्कार, लगे रहिए, और इसके वीडियो के बाद भी गाली चालू रखिएगा। आपके गाली से मुझे, एक गाली से 100%, 10 गाली से 1000% देते रहिए मुझे। हमने सीखा है लोगों से, क्योंकि यही तो खड़ी की गई है इस विरासत, IT सेल की विरासत। और उस बता देना, वो 56, 46, 65, 52 जो भी इंच वाला हो ना, जो मुंह नहीं खोल सकता, वो ऐसे ऐसे 50 पैसे के बदौलत, जो ये 50 पैसे मेरे 50 पैसे के ट्वीट पे मेरे दोस्त, जो हमारे नौजवान, चाहे उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बड़गला रहे हो, दोस्त, आने वाला वक्त बहुत खराब आएगा आपका भी, याद रखिएगा। नमस्कार।